ARYQ ٹیلی ویژن کے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے رحمت سحر میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی، اور میرے ساتھ آپ کے اور میرے پیارے میزبان محترم صفدر علی محسن صاحب۔ الحمدللہ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم 10ویں روزے کی سحری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، رمضان المبارک باقی مہینوں کی نسبت ہمارے لیے یہ ایک انتہائی عظیم نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوش نصیب امت کو عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں میں یہ نعمت اس شان اور اس انداز کے ساتھ ایسے نہیں تھی، دوسری امتوں کو یہ نعمت ایسے نہیں ملی۔ یہ ہم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ناظرین، اسی مقدس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اسی ماہ مقدس میں قرآن مجید عطا کیا گیا، جو بلا شبہ ہدایت ہے، جو فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اور اس کے اندر، اس کتاب مبین کے اندر، اس جہان کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے ہماری کامیابیوں کی کنجیاں ہیں اور گارنٹی ہے۔ ناظرین، اسی ماہ مقدس میں وہ یوم بدر عطا ہوا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور اسی ماہ مقدس میں یوم الفتح، جس دن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو وہ شان عطا فرمائی کہ بغیر ایک خون کا قطرہ بہے اس شہر پاک کی کنجیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی گئیں، اور اس دنیا افق پر ایک سلطنت محمدیہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوئی۔ ناظرین، یہی مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے ان ایڈوانس آپ فرماتے، صحابہ تیاری کرو، اس مہینے میں اللہ اپنے سارے خزانے کھول دیتا ہے۔ ان ایڈوانس آقا علیہ السلام حکم فرماتے صحابہ کو تیاری کا۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے ناظرین کہ یہ مہینہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ہمیں عطا ہوا، اور اگر ہمارے دامن پھر بھی اس کے ثمرات سے خالی رہیں تو یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہمارے لیے ہوگا۔ اپنی نگاہوں کو، اپنے قلوب و اذہان کو، اپنی توجہات کو، اپنے اعمال کو فقط اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کی طرف مرکوز کر لیجئے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں نوافل جو ہیں وہ فرائض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور جو فرائض جب بندہ ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج رحمت سحر میں جو شخصیات آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں آپ کی اور میری پسندیدہ علمی شخصیت، روحانی شخصیت، ایک فکری شخصیت، اور صاحب تصانیف ہیں آپ کے قلم سے نہ صرف قرآن و حدیث کے موضوعات پر بہت ساری کتابیں جنم لیتی ہیں، بلکہ کبھی آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کی صورت میں، کبھی منقبت نگاری کی صورت میں آپ کا جب قلم حرکت میں آتا ہے تو اس شاکان مصطفیٰ کو ایک بہت بڑی تسکین اور ذوق ملتا ہے۔ میری مراد جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، میری بائیں جانب عالم اسلام کے بہت بڑے ثناخوان مصطفیٰ، نعت خوانی اور آقا علیہ السلام کی مدح جن کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ آپ بھی ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، علمی شخصیت ہیں، معروف ثناخوان مصطفیٰ اور نعت خوانوں کے استاد میں کہا کرتا ہوں محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، میرے خیال میں نا، اور آپ کی ساری پیاری پیاری ٹیم کے ممبران۔ صرف نعت خان کہہ دیں تو بہت بڑا تعارف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی۔ بس نعت خان کہہ دیں۔ اللہ کریم جب نعت کا فن عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے اندر سارے علوم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمارے مہمانوں کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اور آج مفتی محمد طاہر تبسم صاحب نہیں ہیں تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری دائیں جانب گھر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ، وہ آج نہیں آئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ کو عطا صحت فرمائے۔ کاملہ ہم ان کو عاجلہ مس عطا کر رہے ہیں، فرمائے۔ میں تو بہت کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ روفی صاحب، کیونکہ صحت کی بات ہوئی ہے تو پروگرام کا بالکل آغاز ہے، اور ناظرین کرام جس طرح نوشاہی صاحب نے فرمایا 10ویں رمضان کی سحری الحمدللہ آج ہم اختیار کر رہے ہیں۔ گویا آج عشرہ رحمت کی یہ آخری سحری ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس نے مہربانی فرمائی، تو کل سے انشاءاللہ عشرہ مغفرت کی سحری کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ گویا آج ہم رحمت اور مغفرت کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جن خوش نصیبوں نے اس عشرہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہمت کی، جن کو اللہ نے توفیق دی، اور جس کو اللہ رب العزت نے استعداد بخشی، انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق، کوشش کے مطابق کوششیں کی، اللہ رب العزت ان کی کوششیں قبول فرما لے۔ آمین۔ جنہوں نے رحمت کے لیے کوشش کی، اللہ رب العزت انہیں رحمت عطا فرما دے۔ آمین۔ آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رفیع صاحب سے ہم نے حمد سماعت کرنی ہے، حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوگا۔ میں انہیں دعوت کلام دیتا ہوں۔ صبح دم جب کسی طائر کی صدا آتی ہے، صبح دم جب کسی طائر کی صدا آتی ہے، لب پہ بے ساختہ بس حمد خدا آتی ہے، پھرنے لگتے ہیں میری آنکھ میں میزاب و حتیم، پھرنے لگتے ہیں میری آنکھ میں میزاب و حتیم، یاد جب صحن مقدس کی فضا آتی ہے، کوئی فن اور ہنر پاس نہیں ہے میرے، تیرے محبوب کی بس حمد و ثنا آتی ہے، مشکلیں جب کہیں آتی ہیں سرے راہ حیات، دستگیری کو وہیں تیری عطا آتی ہے، ساتھ لے آتی ہے محراب حرم کی خوشبو، جب مدینے سے کوئی موج صبا آتی ہے، خواہش نفس کا شہزاد چھٹے دل سے غبار، تب کہیں جا کے سمجھ شان خدا آتی ہے۔ روفی صاحب حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ۔ تیرے دور خلقت ساری ہاتھ پسارے، خلقت ساری تجھ کو پکارے، خلقت ساری۔ حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ۔ رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ، حق اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ۔ رحمت دادری یا الہی، ہر دم وقت کا تیرا، رحمت دادری یا الہی،
हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह 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 हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह 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 हक अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह 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 हक अल्लाह 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 अकबर। नाज़रीन, आज रहमत सहर में हमारा मौजू भी आज अल हक़ है। माशाअल्लाह, अस्माउल हुस्ना के हवाले से अल्लाह करीम की प्यारी शान। इससे कबल के इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, इससे पहले आपकी खिदमत में हम हस्बे मामूल एक बहुत खूबसूरत पैकेज आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिससे आप अल हक़ जो है अल्लाह करीम की सिफ़ात और अल्लाह करीम की शानों का आप नज़ारा करते हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन किराम, आपने पैकेज मुलाहिज़ा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त अल हक़। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से। हज़रत, सबसे पहले तो लफ्ज़ अल हक़, उसका मफ़हूम और उसकी कुछ तशरीहात उस पर बयान कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन मौला यसल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए सिफ़ातिया में से है और आज इस पे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का शरफ़ हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दायरा सिफ़त हक़ से अपना हिस्सा वसूल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल हक़ अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़त ज़ातिया में से इस्म है। अल्लाह अल हक़ सिफ़ात ज़ातिया में से है और इसकी एक जहत जो उलमा ने लिखी कि अल हक़ का माना है जो साबित हो, सही, ट्रुथ। ट्रुथ। और सूफिया ने, उलमाए ज़वाहिर और अहले लुग़त ने कहा कि हक़ का माना है सच और ट्रुथ, और उरफा ने कहा कि अल हक़ का माना है एक्चुअल रियलिटी। वाह, एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी, हकीकतुल हक़ाइक़, बहुत खूबसूरत। तमाम हकीकतों की असल। असल, जहाँ कहीं हकीकत का वजूद है दुनिया के अंदर मजाजन, तो उसकी असल अल हक़ है। वाह, ज़ाते बारी ताला का दायरा सिफ़त हक़। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये दायरे का लफ्ज़ मैं कभी कभी इसलिए बोलता हूँ कि सिफ़ात को जब तक हम विजुअलाइज ना करेंगे हमें समझ नहीं आएगी, तफहीम नहीं होगी। तफहीम अल्लाहु नहीं होगी। अकबर। तो जो अहले मुशाहदा हैं उन्होंने कहा कि हर सिफ़त का एक दायरा है और वो दायरा लामहदूद है। अल्लाहु अकबर। ये कायनात भी दायरे में ही है असल में। बिल्कुल सही। अगर यूं भी जाएं तो दायरा है, यूं भी नीचे से ऊपर देखेंगे आप सैर करते हुए तो एकदम बंदा अपने आप को दायरे में पाए, जिस मर्जी जहत से जाएं। और फिर इसके अंदर एक बरज़ख है, अल्लाहु अकबर। उस दायरे के अंदर एक ख़त है जी, जिसको अर्श मुअल्ला कहते हैं। अल्लाह, वो अर्श मुअल्ला जो है आलम अमर और आलम खल्क को आपस में जुदा करता है, उसको हद फासिल कहते हैं, अल्लाह बरज़ख अल्लाहु अकबर। बैनल अम्र वल खल्क। तो सुभान अल्लाह अल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त का दायरा सिफ़त हक़, उसकी तजल्ली जहाँ पड़ी दुनिया के अंदर वहाँ हक़ ने वजूद पाया और जन्म बहुत लिया। खूबसूरत। हक़ सुभान का अल्लाह, इजहार हुआ। इस तरह हुआ। तो इसलिए अल हक़ का एक माना है मुज़हिरुल लिल हक़, माशाअल्लाह। अल्लाह खुद हक़ भी है और हक़ का इजहार करने वाला भी है, अल्लाह, हक़ सुभान को अल्लाह, ज़ाहिर सुभान फरमाने वाला भी है, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छा। सूरतन भी और मानन भी, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी। जहाँ जहाँ हक़ है दुनिया के अंदर माशाअल्लाह, समझ माशाअल्लाह। लीजिए कि ज़ाते बारी ताला के अनवार की तजल्लियात माशा- वहाँ मौजूद हैं। क्या खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल हक़ अल्लाह करीम की सिफ़त ख़ासा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू जारी है। जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस बात को अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद नाज़रीन किराम, रहमत सहर में RYQTV पर आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। हमारा आज का मौजू जिससे हम बरकत कशीद कर रहे हैं और रहमतों के हकदार बन रहे हैं वो है लफ्ज़ अल हक़। इस लफ्ज़ की तशरीह और मफ़हूम की तरफ हम बढ़ रहे थे, अभी बात हमारी नामुकम्मल थी, तो मैं दोबारा अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि इसकी मज़ीद तशरीह बयान कीजिए। इस इसमें पाक अल हक़ के अंदर देखें सिर्फ दो हर्फ हैं, हाँ दुरुस्त। और हा काफ, और काफ। और इसकी मुनासिबत हरफी तौर पे इसमें हु से है।
दुरुस्त। जी वो भी दो हर्फ हैं, हा और वाव। हा और वाव, और ये है हा और काफ। तो हा और वाव जो है, क्योंकि ये लफ्ज़ सिफत ऐसी है कि अक्सर हुवल हक के साथ आती है, दुरुस्त, ज्यादातर। और इसका वजीफ़ा, इसका ज़िक्र और इसका बयान जब होता है तो हु की ज़मीर के, इसमें ज़मीर के साथ होता है। बिल्कुल सही। वल हक, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हक़्क़ुल वल मुबीन। हक़्क़ुल मुबीन। दुरुस्त। जी हु जो है, इसको उलमाए ज़ाहिर जो हैं वो कहते हैं ये इसमें ज़मीर है, मज़ीद कलाम की मोहताज है, यानी इसका ख़ुद कोई माना नहीं है जब तक इसके आगे पीछे सियाको सबाक ना लगे। खूबसूरत बात। लेकिन उरफा कहते हैं ये मुकम्मल कलाम है, अल्लाह अकबर। अल्लाह क्योंकि ज़ाते बारी ताला पर जैसी दलालत हु करता है कोई इसम नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इमाम अबू बकर इब्न फ़ौरक कुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़, जो हुज़ूर दाता साहब के दादा उस्ताद और शेख हैं, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि जो इल्म तजवीद है, मखारिज जो हैं, इसका अव्वल ये हमारा जो जिसको कहते हैं हरूफ शफविया, जो होंठों से अदा होते हैं, सही। जी ये वाव जो है हरूफ शफविया में से है, वाव जी यानी पहला मखरज। दुरुस्त। और हा जो है ये हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है, हाय हव्वस जो है, जी जी जी। तो ये आखिरुल मखारिज है, ये अव्वलुल मखारिज है। खूबसूरत। अल्लाह अकबर। सुभान कहते अल्लाह। हैं हा और वाव में अव्वल भी है, आखिर भी है, इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। इंतहा भी है। वाह, क्या सुभान इम्तिजाज है। अल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर। क्या बात, इसी तरह हक, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। दो हर्फ हैं, जी लेकिन ज़ाते बारी ताला पर जैसी दलालत इसमें मुबारक ने फरमाई है, अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात की मानवियत को जैसे इसने जाहिर किया है, हाँ हाँ हु जो है उसने बातिन को जाहिर किया है, वाह। हाँ हाँ हाँ, और हक जो है इसने जाहिर को खोला है। जाहिर को खोला है। सुभान अल्लाह। इसलिए इसके साथ अस्मा हुस्ना के अंदर आता है अल हक़्क़ुल मुबीन, दुरुस्त। और उसको मिला के पढ़ा जाता है। खुद हक भी है और फिर मुबीन भी है, वाह। अल्लाह अकबर। यानी हक को वाज़े करने वाला, खोलने वाला। अल्लाह अक्ली दलाइल से भी, खूबसूरत। लॉजिक से भी, मंतिक से भी, ज़ाहिरी तौर पे भी, बातिनी तौर पे भी इत्माम हुज्जत कर देने वाला अल्लाह अकबर। सुभान बातिल पर। हाय हाय। चूँकि हमने पहले भी बात की, अलअशियाउ तुरफ़ु बिअज़दादिहा, अलअशियाउ यतमय्यज़ु बिअज़दादिहा, चीज़ें अपनी ज़िद्दों से पहचानी। तो हक की ज़िद्द क्या है? बातिल। वाह। अल्लाह। तो हक अपने इजहार के लिए बातिल को हर जगह पर दलाइल काहिरा के साथ ऐसे मबहूत करता है वाह वाह और वाह। ऐसे मिटाता है कि फिर उस बातिल के पास कोई गुंजाइश नहीं रहती। फ़बोहे तल्लज़ी कफ़र का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल को किया इस्तेमाल जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलाइल दिए नमरूद के सामने। अल्लाह तो इसमें सफदर साहब बड़ी अजीब बात रूफी साहब, अल्लाह और लतीफ़ तरीन बात यह है जी कि बज़ाहिर गैब है, बहुत आला। अल्लाह। बज़ाहिर माबूद बज़ाहिर गायब। बज़ाहिर गैब। माबूद बज़ाहिर गैब है, लेकिन उसका शहूद इस दर्जे का है कि हाँ। सिर्फ दलाइल पेश किए जाएं तो कुफर मबहूत हो जाता है। अल्लाह। हालांकि उसने आंखों से देखा नहीं, देखा नहीं है, सिर्फ दलील के ऊपर ये मामला सिर्फ है। उसूल तो ये है ना कि दिखा भाई, हक़ अल्लाह। इंसान तो जाहिर का बंदा है, वो क्या तो कहता है कहने? जब दिखाओगे तो मान लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसा हक है कि बगैर देखे भी इतना जाहिर है कि दस्से सूरत रा बेसूरत बेसूरत दा, दा। अल्लाह अकबर। तौबा रा के ऐन हकीकत हकीकत दा, दा। अल्लाह अकबर। अरे कामणी बेसूजत सूजत दा, दा, कोई विरलियम होती लहतरियां। लहतरियां। इसलिए उन दलाइल व बराहीन में से जो बुरहान उज़मा है और बुरहान आज़म व अकबर है, वो ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि और इस वसल्लम। हक के वजूद की रब्बे कायनात ने जो सबसे बड़ी दलील इस दुनिया में भेजी है, जी। वो है कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ऐ लोगो, तुम्हारे रब के वजूद की बुरहान तुम्हारे पास आ गई, अल्लाह। और वो है ज़ात सल्लल्लाहु पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। यानी अब मैं इसको बात को समेट दूं, इस तमहीद को, कि इस कायनात का सबसे बड़ा दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह। और उसूल है, कानून है, ज़ाब्ता है कि हर दावा दलील के बगैर नामुकम्मल और नाकाबिल कबूल होता है। ट्रू। तो इस दावे की दलीलें रब्बे कायनात ने कमो बेश इंसानी शक्ल में 1,24,000 भेजी, बिल्कुल दुरुस्त बात। अल्लाह। अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की शक्ल में। अल्लाह। वो आते रहे यही मनवाने, अलैहिमुस्सलाम। हर नबी यही दावा लेके आया
हाँ हाँ और कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू है, लोगों मान लो, कह दो हाँ हाँ कि वो उस अल्लाह एक है। माबूद हकीकी के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहु अकबर। और बेशक। आज मैं इसका तर्जुमा सूफियाना करने लगा हूँ, कलमा जी। तैयबा का तर्जुमा वो है, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बहुत ही खूबसूरत इसलिए बात कि है, अल्लाह का कोई तर्जुमा नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सुभान अगर अल्लाह, आपने अल्लाह का तर्जुमा करने की कोशिश की तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाएंगे। इसलिए उसूली तर्जुमा यह है कि उसका कोई बदल नहीं है। बेशक अल्लाह के इसलिए सिवा कोई अल्लाह अल्लाह लफ्ज का खास तौर पे कलमा तैयबा में कोई बदल नहीं है। इलाह और भी हैं, माबूद और भी हैं, अल्लाह सिर्फ एक। एक है। बहुत खूबसूरत सुभान बात। इसलिए अल्लाह, अल्लाह सुभान के सिवा कोई अल्लाह नहीं। उम्दा और बात। उस बिन देखे रब को मनवाने के लिए फिर अल्लाह। रब्बे कायनात ने ऐसी रोशन और ऐसी अल्लाह। जिंदा दलील भेजी कि जिसने रब दिखाया नहीं लेकिन रब ऐसे मनवाया कि सहाबा कहते थे लगता है सामने देख के इबादत करो। हाँ 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। उम्दा। अल्लाह नाज़रीन, मज़ीद आपने जहाँ पर अल हक़ मफ़ाहीम के बारे में जाना, वहाँ पर इसकी जो मारिफत के पहलू हैं, आरिफाना इसका जो एक इमेज बनता है, उस हवाले से बहुत फसाहत के साथ मोहतरम अल्लामा साहब से गुफ्तगू सुनी। मोहतरम अल्लामा साहब, लफ्ज़ हक़ अल्लाह ताला के अलावा और भी चीज़ों के लिए बोला जाता है, जैसे दीन हक़, कुरान हक़ वगैरह। अब इस हवाले से ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। सूरह फतह देखिए ना, आखिरी रुकू में फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। जी जिसने, अब देखिए हक की एक चेन बनी हुई है, ज़ाते बारी ताला से फ्यूज़ात हक आ रहे हैं। जी जी। और कमाल यह है कि उस मंबा हक से जुड़ी हुई हर चीज हक है। हाँ हाँ अल्लाह अकबर। वाह वाह अभी पैकेज में आपने बुखारी शरीफ की सुभान हदीस अल्लाह। में पाक के अल्फाज जी, जी, सुने। बिल्कुल दुरुस्त। हर रोज तहज्जुद मरहबा। में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज उठते ही पढ़ते थे दुआ के, लकल हम्दु, अल्लाह ऐ अल्लाह हमद हमद तेरे है तेरे लिए, लिए। तारीफ आय, तेरे लिए, बेशक, और हकीकी तारीफ के लायक बस तू ही है। हाँ 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 वाह 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 तमाम खूबियां सिर्फ तेरे लिए हैं। तेरे लिए। अंतल हक, ए अल्लाह तू भी हक है, हाँ हाँ अल्लाह और ए अल्लाह तेरा नाम भी हक है, और तेरा वादा भी हक है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और तेरे रसूल भी हक हैं, तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक हैं, हक। तेरी जन्नत भी हक है, सुभान तेरी अल्लाह। नार भी हक है, तेरा दीदार भी हक। अल्लाह साहब, इस बात को फिर हम यहीं से दोबारा जोड़ेंगे। नाजरीन, गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन किराम, ARYQTV पर रहमत सहर में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। लफ्ज़ हक़ की गर्दान के साथ हम आपसे रुखसत लेकर गए थे। आइए इसमें हक़ का विर्द दोबारा शुरू करते हैं। सवाल की सूरत में मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, जिसका तर्जुमा क़िबला ये है कि ए अल्लाह, हमें हक़ को हक़ दिखा और इसकी ताबेदारी नसीब फरमा, आमीन। और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचा। इस दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तशरीह और इसके मफहूम को जरा बयान बहुत कीजिए। अहम, बहुत बाबरकत दुआ है, पूरा मंशूर हयात है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे नल हक का हक्कन, तकरार देखिए, वजीफा हक का चल रहा है। अल्लाह हमारे नल हक का हक्कन। हक्कन, यहाँ हक अब दूसरे मानी में आ रहा है, हकीकत के मानी में। जी ए हक, अब मैं अल्लाहुम्मा का तर्जुमा अगर ए हक कर लूं, जी ए हक, हमें हर हक को हक दिखा, हाँ 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 अल्लाहु अकबर। वाह क्योंकि हम खुद इस काबिल भी नहीं हैं कि हक को हक समझ के उसके हक के मुताबिक देख सकें, बहुत अल्लाह खूबसूरत है। हाँ, अल्लाहु हाँ, हाँ, अकबर। क्या जुमला जैसा है। कि उसका हक है। वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह हमारे नल हक का हक्कन, ए अल्लाह हमें हक को हक दिखा, अल्लाह अल्लाहु अकबर। वर्जुकना इत्तिबा, फिर उसे मान लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर। क्या हो? इसमें मैसेज क्या है कि बाज दफा ऐसा होता है कि हक आपके सामने मुजस्सम मौजूद है, लेकिन जी। आपको उसका फहम नहीं कि यह हक है। अल्लाहु अकबर। समझ भी नहीं तो आती। पहले तो अल्लाहु तौफीक अकबर। चाहिए देखने की, पहचान फिर की, समझने आशनाई की, जी। फिर उसी बारगाह हक से अता होगी तो हक समझ आएगा और फिर हक मानने की तौफीक होगी। अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। अल्लाहु तो अकबर। हक का पहला हक ये है कि आपको हक हक दिखाई दे, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। हक अल्लाह। नजर आए। और माशाअल्लाह दूसरा हक ये है कि आप उस हक के आगे सरे तस्लीम खम करके खड़े हो जाएं, जब हक और नजर ये आ ना जाए। देखें, अल्लाह। ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें क्या क्या कह रहा है। वाह हक का अल्लाह हक यही है। अल्लाह कुफर मज़ीद और बातिल कहाँ अड़ गया था? अल्लाह वही मज़ीद अटक फज़ल। गया था अबू जहल।
इसी मौके पर हाँ। अल्लाह अकबर। और जहालत इसकी जिद जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो अबू जहल का खिताब दिया है वो इसी हक के इनकार का नतीजा है। वजह बुनियादी यही अब यहाँ ये भी समझ लीजिए इस हक और हकीकतुल हकायक की बरकत से आज जहालत भी समझ लीजिए बेनकाब हो गई है। अल्लाह जहालत का पर्दा भी चाक हो गया कि जहालत सिर्फ अनपढ़ होने का या इलिटरेट होने का नाम नहीं है। नहीं नहीं जी 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 सही सही बड़े बड़े पढ़े लिखे अबुल हकम कहलाने वाला शख्स मक्के में अरब का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, अल्लाह उसे बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जाहिलों का बाप और जहालत का मंबा का खिताब मिल रहा है तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि कायनात का सबसे बड़ा हक उसके सामने मुजस्सम मौजूद था अल्लाह अकबर। वो और इनकारी हक उस पे खुल भी चुका था अल्लाह अकबर। और फिर नहीं माना। फिर नहीं माना। फिर अल्लाह उसका नफ्स अम्मारा आ गया, आड़े आ गया। उसने कहा कि मेरी सरदारी जाती है, अल्लाह कहाँ हबशे का स्याह फाम गुलाम हो और कहाँ अरब का बुलंद कामत सरदार अबू जहल अमर बिन हिशाम जिसका नाम था। ये तेरा कलमा जो है हमें बराबर बिठाता है, इसलिए हमारे बारे में नहीं। तो हक जो है जिस वक्त ये सामने आता है तो फौरन दो कमाल बहुत बड़े जाहिर होते हैं। एक ये कि आप पर हकीकत मुनकशिफ हो जाती है, दूसरा आप पे बातिल का इंकिशाफ हो जाता है। अल्लाह आरिनल बातिला बातिलन, अल्लाह अकबर। वो भी हम इस काबिल नहीं कि बातिल को बातिल देख सकें। अल्लाह अल्लाह अकबर। तेरे फजल और तेरी तौफीक से हम बातिल को बातिल देखेंगे तो मौला हमें बातिल को बातिल ही दिखा, वर्जुकना इज्तिनाबा, अल्लाह फिर उससे और बच इससे बचने जाने की की तौफीक अता तौफीक अता सैयदी फरमा। मरहबा। बातिल से सुभान भी आप अल्लाह, उस वक्त तक नहीं बच सकते जब तक अल्लाह की तौफीक और हकीकत आप पर खुली हुई ना हो। इसलिए हक की मुनासिबत, सिफत हक का वजीफा जिक्र और अल्लाह की सिफत हक से तभी ईमानी रूहानी मुनासिबत होगी तो हर हक वाज़े होगा, हर बातिल वाज़े होकर सामने आ जाएगा और आप सही रास्ते का इंतखाब कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन बहुत बहुत उम्दा। खूबसूरत बात अल हक और हक के हवाले से यानी मुझे तो ये बात अल्लामा साहब समझ आई कि आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि जहालत सिर्फ इसको नहीं कहते कि कोई शख्स इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं, बल्कि जो हकीकत को झुटलाने वाला है वो जाहिल है। सबसे बड़ा जाहिल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ पर नाजरीन आपके और हमारे सब के ज़ौक़ के लिए हम एक कलाम शामिल करना चाहेंगे और गुजारिश करते हैं मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ आपका साहब हुक्म से। है, वरना जिस तरह मोती जो है पिरो पिरो के बिखेर बेशक, रहे हैं ना, बेशक। मेरा भी अपना दिल चाह रहा था कि मैं कुछ ना पढ़ूं, मैं सुनता जाऊं। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे, अल्लाह मज़ीद फज़ील। आमीन। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरे की लेना तस्बीह फड़ के इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया की लेना चिल्लिया वड़ के जाग बिना दूध जम देना ही भावे लाल होवण कड़ कड़ के अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह
बाहू हक बाहू सच बाहू अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो बेशक बाहू हक बाहू बेशक बाहू अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो नाम ऐसे ना पाछटा की ना पूरी सरसाई ना मैं तोला ना मैं मासा हुण गल रतियां ते आई रती होवा रतियां तुला ओ भी पूरी नहीं वजन तो पूरा वंज हो सीबा वजन तो मंज पूरा हो सीबा जदा हो सी फजल इलाही अल्लाह हो 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 सच बाहू हक बाहू सच बाहू अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो बहुत खूब। नाज़रीन किराम, विरद हक जारी है और हू की ज़रब जारी है रहमत सहर में। मुख्तसर वक्फा है, इंशाअल्लाह वक्फे के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप शामिल हैं रहमत सहर में और बड़ी पुरकैफ और वजदाफरी गुफ्तगू अल्लाह करीम की इस सिफत पाक के हवाले से आप सुन रहे हैं। मोहतरम अल्लामा मुजद्दिदी साहब, आपकी गुफ्तगू जब आपने हक़ का तज़किरा फ़रमाया और हकीकत की बात की और फिर इसमें अल्लाह करीम की ज़ात को आपने डिस्कस किया, फिर आकल इस्लाम के वजूद मसूद का आपने तज़किरा फ़रमाया। अब लेकिन गुफ्तगू ने एक डायरेक्शन ऐसी भी ली कि जहाँ पर मेरे ज़हन में ये बात आई कि आप इसको इस हवाले से बयान कीजिए, ये जो हमारे अंदर इंसानी रवैये हैं उसमें मैं थोड़ा अपने माशरती रवैयों के हवाले से बात भी करना चाहता हूँ। हमारे जो मुआशी, इक्तसादी, समाजी रवैये हैं हमारे, और फिर जो उरफा मोहतरम मुजद्दी साहब हकीकत बयान फरमाते हैं, जैसे मोहतरम रूफ़ी साहब ने कलाम पेश किया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह का, उसमें जो हकीकत बयान हुई, उसमें जो हक़ बयान हुआ उसकी भी नफ़ी करते हैं लोग। यानी उसमें जब आपने फरमाया वो जाहिल होते हैं जो इन बातों का इनकार कर देते हैं, इस इल्म को नहीं मानते, इस हवाले से जो इंसानी रवैये हैं इसको आरिफाना ज़ौक़ में ले लीजिए, इस हवाले से फरमाइए आप। देखिए बाहू का क्या मतलब है? बहुत अच्छा है। अल्लाह वाला, अल्लाह वाला, वाह वाह। बाहू का तर्जुमा है अल्लाह वाला जी, हू के साथ। और ख़ुद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने लिखा है, इसको उल्टा के पढ़ोगे तो वहाब बन जाएगा। बहुत अच्छा है। अल्लाह अकबर।
अच्छा वाओ हा अलिफ बा, वहाब अच्छा बाहू को जी जी तरतीब उल्टा बलद के पढ़ेंगे, कल्बे हैत करेंगे तो ये इसमें वहाब बन जाएगा। जी अब इसके अंदर मानवीयत के कितने जहान पोशीदा होंगे, आप वो इसी से अंदाज़ा, इस इशारे से अंदाज़ा कर लीजिए। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हु क्या है, अव्वल भी हु और आखिर भी हु। और वो फरमाते हैं कि अंदर हु थे बाहर हु, दम हु दे नाल जलिंदा हु। तो बात ये, तो ये सारा चूँकि काल नहीं हाल है, तो जी। हाल जो होता है शुनीदा कैब वद मानिंदे दीदा, वो सुना हुआ देखे हुए के बराबर हो नहीं सकता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हक और हक के मज़ाहिर जी जो कायनात में हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं उन तक रसाई हासिल करें, दलाइल व बराहीन हक तक रसाई हासिल जी करें, जी जी जहाँ हवासो इदराक की जो रेंज में हैं, क्योंकि हम हवासो इदराक के बंदे हैं ना, हिस्सियात जी, व जी। इदराकात की दुनिया में रह रहे हैं। तो हवास के अंदर आने वाला हक जो है उसे तो कम से कम हम समझ लें और उसको तो पालें मानें, जी, और जी। उसको तो मान लें। जी जी उसके बाद फिर अगला स्टेप शुरू होगा कि अब वो चीज़ें जो हवास से बाहर हैं लेकिन हक हैं, अल्लाह अकबर। फिर हमने उन तक पहुंचना है। और उसके लिए भी अल्लाह ने हमें 5 बातनी हवास दिए हैं, जो मारिफत की जो हकीकत बातनी हकायक हैं, जी, 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 जी। उन तक भी हमें हवास दिए गए हैं, वो अंदर के हवास हैं। बुखारी में है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनामु आइना या वला यनामु कल्बी, फरमाया मेरी आंख तो ये सोती है, मेरा कल्ब नहीं सोता, अल्लाह वो अकबर। हर वक्त जाग रहा है। हाँ 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 तो आका करीम अलैहिस्सलाम की ये शान है रूफी साहब, सुभान अल्लाह। कि अखी सोवन, सुभान अल्लाह अखी सोवन दिल ना सोवे, हाँ 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 अखी सोवन दिल हक ना के। दिल सोवे। ना सोवे, सुते भी बेदार तुसी। तो इसलिए मैं इस पे नबी कह सो सकता जाए हूँ तो हक वो के। हक के, बेशक हक। अभी हमने वजीफा पढ़ा ना हक का, अल्लाह ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। बुखारी की हदीस है कि आप हर रोज तहज्जुद के उठते हक हक का वजीफा करते हैं। माशाअल्लाह, ए अल्लाह तू भी हक, तेरे नबी भी हक, तेरे रसूल भी हक, तेरा दीदार भी हक, आहा। तेरी जन्नत भी हक, तेरी दोजख भी हक, तेरा हर हुक्म फरमान हक हक हक, अल्लाह अल्लाह हक ही हक है। और सुभान तेरा अल्लाह, फैज भी सुभान हक, तेरा फैज भी जो हक, वफा तेरे को वली मिला। भी हक, तेरे दोस्त भी हक, तेरे प्यारे भी हक, तेरा कुरान भी हक, तेरा दीन भी हक, तेरी बात भी हक, हर वो चीज और वो सोच जो तेरी तरफ मुतवज्जे कर दे वो हक। मरहबा। और फिर ये प्रोग्राम भी हक। अल्लाह तो हमें जो दलालत अलल हक करने वाली चीजें हैं। अब वुजू जो है फुकाहा कहते हैं मकसूद बिज़ात नहीं है, वुजू जी 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 मकसूद बिज़ात नहीं है, कुछ भी नहीं है वुजू। अगर वुजू करके आप बैठे रहे हो नमाज ना पढ़ी, जी 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 बहुत अच्छी उम्दा बात है। मिलेगा कुछ? खूबसूरत बात। वुजू कर लिया, तो वुजू क्या है? मकसद की तरफ नहीं बढ़े। मूसिल इलल मतलूब है। अल्लाह अकबर। मुसिल इलल मतलूब, जिसे आपने निशाने मंजिल कहा था, वाह मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता है जी। अब कुएं पर पहले जमाने में रस्सी और डोल जो डाला जाता था वो मकसूद बिज़ात नहीं है, दुरुस्त बात है। जी वो जी पानी तक पहुंचने का जरिया है। वाह रसाई है। जी जी वाह वाह लेकिन वाह। उसके क्या बगैर सहल जी अंदाज से आसान हो आपने गया ना। समझाया। तो माशाअल्लाह। अब क्या वाह, हुआ वाह। कि वो रस्सी और डोल भी हक हो गया, वाह क्योंकि वो हक तक पहुंचने का एक जरिया जरिया है और सबब वसीला है। अल्लाह आपकी अकबर। प्यास नहीं बुझ सकती, अल्लाह आप पानी नहीं अकबर। तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए औलिया अल्लाह और अल्लाह की तरफ दलालत करने वाली ज़मानी मकानी तमाम चीज़ें उनको हक से ताबीर किया गया। और रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, आहा। ये जो मेरे महबूब आए हैं हक की तरफ से, हक बनकर, हक लेकर, आहा। हक पहुंचाने आहा। और हक तक पहुंचाने वाह, के लिए। वाह, अल्लाह वाह, अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाह। एक पूरी चेन है हक की। सुभान अल्लाह। और रब्बे कायनात ने उस हक की तरसील के लिए जितने ज़राए इख्तियार किए हैं, जिब्रील अमीन वो भी हक, सच्चे वाह। अमीन, हकीकत को आगे पहुंचा रहे हैं। कुरान है वो भी हक, वाह, वाह, वाह। और जो फरमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो भी हक। जब आप उस पर अमल करेंगे, उसको इख्तियार करके फॉलो कर लेंगे, आप हक तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह और सिरात मुस्तकीम की सारी डेफिनेशंस जी, जी। वो इसी सिफत हक से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने हक को पाना है तो हक के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और इमाम इब्ने कसीर की रूह को मैं सलाम पेश करके अर्ज करता अल्लाह हूँ अकबर। कि सूरह फातिहा की तफसीर में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर दिमश्की रहमहुल्लाह ने लिखा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। उनका सिरात मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो अब आपने अगर ज़ाते बारी ताला तक पहुंचना है तो अल्लाह की तरफ से रिकमेंडेशन भी यही है हाय। और हमारी साइड से भी तकाजा यही है हाँ, कि हम सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ें। अल्लाह। जब सिरात मुस्तकीम पे आ जाएंगे तो हक पा जाएंगे। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम दुनिया में आए ही इसीलिए हैं
کہ حق اور باطل میں تمیز کر لیں۔ نشائی صاحب نے جو کویشچن کیا نا، نشائی سے جو آپ نے بات کی، میں بس چونکہ وقت کم ہوتا ہے میں صرف اشارہ کر دوں کہ دنیا میں صرف 2 ہی حقیقتیں ہیں جی جو نظام کے طور پہ چل رہی ہیں ازل سے، جی ایک حق ہے اور ایک ایک باطل ہے، جی یہ یاد رکھیے، دنیا میں 2 حقیقتیں پیرالل چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، باقی ہر نظام یا حق سے جڑا ہوا ہے یا باطل یا سے باطل جڑا سے ہوا جڑا ہے۔ ہوا ہے۔ جتنی بھی آگے برانچز ہیں، جتنی آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، جی 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 جتنے چھوٹے چھوٹے آگے اس کے اجزاء یا شعبے ہیں، وہ یا حق کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا باطل کو کر رہے ہیں۔ باطل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کل جا الحق وزہق وزہق الباطل الباطل بہت خوب۔ ان الباطل کان زہوقا۔ مکہ معظمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہوئے تو یہ آیات کریمہ آپ کی زبان مبارک پر تھیں، اور صحابہ کرام عملی طور پہ آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہائے ہائے اللہ ہم تو آیت پڑھتے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا حق آتا کیسے ہے اور باطل جاتا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، تو کعبۃ اللہ جو ہے یہ بنایا خلیل نے تھا، بسایا حبیب، اللہ اکبر، اور پھر ایسا بسایا روفی صاحب کہ آج تک ماشاءاللہ ایسا بس رہا ہے سبحان اللہ۔ کہ وہاں بڑے بڑے اجرے جا کے بس جاتے ہیں۔ میں نعرہ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میرا یہ آف ایئر نعرہ لگاؤں گا، نعرہ رسالت میں یا لگا رسول اللہ اللہ صلی اکبر۔ اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ اشعار ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ سبحان اکبر۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں حسن اتفاق دیکھیے علامہ صاحب کہ جو میں سوال کرنے والا تھا آخری جملوں میں بالکل اسی آیت کا آپ نے حوالہ بھی ہو گیا، دیا، یہ حق کی قل برکات، جعل حق وزہق کہا الباطل کہ حق ہو رہا ہے، ان الباطل کان زہوقا، یہ ہے حق کی سبحان برکات۔ ناظرین اکرام، ورد ہے ہمارا حق، اور حق تعالیٰ کی جانب سے حق کی خیرات اور برکات تقسیم ہو رہی ہیں رحمت سحر میں۔ مختصر سا وقفہ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو رحمت سحر میں، اور ان پرکیف گھڑیوں میں الحق اس حوالے سے بڑی پرکیف گفتگو جاری ہے۔ یعنی میں تو کہتا ہوں کہ بیان حق کے ساتھ حق کی بات علامہ مجدد صاحب نے کی، اور یہاں پر علامہ صاحب میں چاہوں گا جو مظاہر حق ہیں ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے، سبحان اللہ۔ وہ انوار کیسے ہیں، وہ روشنیاں کیسی ہیں؟ مجھے ایک بڑی پیاری کتاب یاد آ گئی، مشکات شریف کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہی مظاہر حق ہے۔ واہ، اللہ اکبر، مظاہر حق، مظاہر حق کتاب کا بھی نام ہے۔ تو حق کے مظاہر جو ہیں نا، ان تک اصل میں پہنچے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس حواس نہیں ہے کہ ہم براہ راست حق سے جڑ سکیں، جی، اور براہ راست ذات حق سے ہم اپنا حصہ لے سکیں، جو کہ ظاہرہ بندہ ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے۔ جی، اس ذات پروردگار عالمین کا احسان اور کرم یہ ہے کہ اس نے بندوں کی اس محتاجی کا ازالہ خود فرمایا، اللہ اور اکبر، ایک چین دے دی اپنی صفات سے متصف اور اپنے اخلاق سے متخلق ہستیوں کی اس کائنات کو۔ اللہ اکبر، انبیاء پوری لسٹ دے دی ہے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ میں اگر کبھی دوستی لگانی ہو تو ان سے لگانا، محبت کرنی ہو تو ان سے کرنا، رفاقت لگانی ہو تو ان سے، کیونکہ یہ صرف یہاں کی دوستیاں نہیں ہیں اور یہاں کی رفاقتیں نہیں ہیں، یہ ابدی دائمی اور ہمیشہ کی رفاقتیں جو جنت میں بھی رہیں گی۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی جو سب سے بڑا مظہر حق کائنات میں فزیکل وجود کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، پھر آقا کریم علیہ السلام سے جڑے ہوئے زمان، مکان اور اخوان اور انسان کیا اچھا ہے، اور ہستیاں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، واہ، ان کو دیکھیے۔ اور اس میں نشائی صاحب اللہ اکبر، جو امہات المومنین ہیں اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہن، اس پر پوری امت کے ائمہ علماء میرے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے میں بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں، گویا سمجھے ان کی تھپکی میری پشت پہ ہے، اللہ پورے ائمہ کی، کہ جیسا قرب اس کائنات میں انسانوں میں امہات المومنین کو ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، وہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ اکبر، جس نوعیت کا قرب، اللہ جیسا قرب، خلوت، جلوت، اور پھر اس قربت میں ممتاز ترین مقام جس پہ ام المومنین اور محبوب کائنات نے بھی رشک کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ تمام امہات المومنین مجھ پہ رشک کرتی تھیں، اور میں سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ ان پہ رشک کرتی تھی، حالانکہ وہ موجود بھی نہیں تھی،
हाँ हम सब तो आपस में मौजूद थी। वो तो विसाल फरमा चुकी। 10 रमजान मुबारक जो है वो साल जिसको आमुल हुज़न कहा गया, ऐसा गम था उस जुदाई और उस फिराक का। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या ताल्लुक था उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और उनका क्या ताल्लुक था। तमाम औलाद, तमाम बच्चे एक साहबजादे के सिवा आपके बतन अक़दस से हुए। जी, मुझे कुछ फिर 2 शेर कहने दीजिए। बिस्मिल्लाह जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूफी साहब, मुस्तफा पर फिदा खदीजा है, मुस्तफा पर फिदा खदीजा है, मालिके दो सरा खदीजा है, मालिके दो सरा खदीजा है, मुस्तफा पर फिदा खदीजा है, उनका सरताज ताज नबियों का, उनका सरताज ताज नबियों का, दीन हक की जिया खदीजा है, दीन हक की जिया खदीजा है, मालिके दो सरा खदीजा है, सबसे पहले हुजूर को माना, सबसे पहले हुजूर को माना, नूरे राहे हुदा खदीजा है, नूरे राहे खुदा खदीजा है, मालिके दो सरा खदीजा है। बहुत खूबसूरत है रूफी साहब, माशाअल्लाह। देखिए मोहम्मदुन हक़्क़ुन, बहुत खूबसूरत। ये हदीस से सही, मोहम्मदुन हक़्क़ुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस हक के इजहार का जरिया खदीजा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उस हक का एतराफ देखिए, हुकूक का एतराफ। एक दुनिया हुकूक की भी है ना जी, इसका इस पे हक है, हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं। ये जो हुकूक की दुनिया हमें दीन ने दी, उसमें जरा उम्मुल मोमिनीन के हक का एतराफ देखिए। दीन हक की ज़िया खदीजा हैं और दीन हक की बका खदीजा हैं। अल्लाह ताला अन्हा, कुरान की नस है, ववजदका आइलन फअगना, सूरह वद्दुहा की इस आयत की तफसीर खदीजा हैं रज़ी अल्लाह। ये महबूब हमने आपको मोहताज पाया सो खदीजा दे के गनी कर दिया। अल्लाहु अकबर। सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि आप जरा भी सरफे नजर करें। सैयदुना रूफी साहब सैयदुना जिब्रील फरिश्तों के इमाम हैं और अल्लाह के रसूल हैं। जिब्रील भी रसूल हैं, दुरुस्त। जी जी, और रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया और खैरुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं। और घर में मंजर क्या है जी, वो तैयबा ताहिरा और अरब की मलिकतुल अरब जिनका लक़ब था, अल्लाहु अकबर, अमीर तरीन खातून, अल्लाहु अकबर। वाका करीम अलैहिस्सलाम कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गुज़ा, उनके का शान अक़दस में आ रही हैं जी। और एक छोटे से प्याले में कोई मशरूब डाल के आका की खिदमत में पेश करने आ रही हैं। छोटा सा हुजरा है, बड़ा महल नहीं है, चंद कदम अभी पहुंची नहीं, सेंटर दरमियान में जिब्रील आए और कहा आका ये जो खदीजा आ रही है इनको मेरा भी सलाम कह दीजिए, जो आपकी तरफ प्याला लेके आ रही हैं, और साथ इन्हें बता दीजिए, इन्हें बता दीजिए खदीजा तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम कहता है, और जन्नत में तुम्हें ये जहमतें नहीं होंगी। यहाँ जो खिदमतें कर रही हो वहाँ कोई जहमत नहीं होगी, वहाँ तुम मखदूमा होगी, सब तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, क्या बरकत है, क्या लुत्फ़ और राफत और रहमत है। जिक्र है मखदूमा कायनात का, सिद्दीक़ा दारैन का, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। रहमत सहर में मुख्तसर वक्फ़ा है, आपसे मुलाकात होती है वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप इस वक्त रहमत सहर में रहमत हक की बारिश के नीचे हैं। हम सभी बरस रही है, करम हो रहा है, और इस हक के बयान के साथ अल्लाह पाक की रहमत बसर रही है, और मज़ाहिर हक के फ़ीज़ व बरक़ात हम अपने दामन में समेट रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मैं इस सारी नशिस्त को यूँ कह लें कि
इज्तिमा कंक्लूड करते हुए मैं एक मैसेज आपकी खिदमत में लेना चाहता हूँ मोहतरम अल्लामा मुजद्दी साहब से कि ये जितने आपने फ़ैज़ व बरक़ात और रहमतों का ज़िक्र किया और उसमें उरफ़ा का ज़िक्र भी हुआ और हक़ को जोड़ा फिर हक़ के साथ और हक़ को हकीकत के साथ, हक़ को फिर आक़ा इस्लाम की ज़ात तय्यबा के साथ, उरफ़ा के साथ, यहाँ पे फिर इसका निचोड़ मैसेज क्या बनता है? देखिए निचोड़ ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक़ मुर्रुन, हक़ जो है ये कड़वा होता है, ये चुभेगा। जी हाँ, तो आप याद रखें कि जब आप बीमार होते हैं तो कितनी ही कड़वी दवाई क्यों ना हो, जब डॉक्टर रिकमेंड कर दे तो फिर आप कहते हैं खाओ शिफा होगी। तो इकबाल ने कहा था कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कार तिरयाकी। तो कभी कभी अगर ये सुई चुभे भी तुम्हें तो जग हक की हो तो खुश दिली से उसे कबूल कर लिया करो। इसलिए कि ये न देखा करो कौन कह रहा है, बहुत आला है, ये देखा करो क्या कह रहा है। और हमारे दीन की असल रूह यही हक है। जब तक हमें हक नसीब नहीं होगा बातिल की पहचान नहीं होगी, क्योंकि बाज दफा बंदा सारी जिंदगी बातिल को हक समझ के उसमें गुजार देता है और फिर जब आंख खुलती है तो वो पानी सर से गुजर चुका होता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात की थी, फरमाते हैं बसा इबलीस आदम रोए हस्त, अल्लाहु अकबर, कभी कभी इबलीस भी आदम की शक्ल में फिर रहा होता है। बस बहर दस्ते नबायदाद दस्त, हर एक के हाथ में हाथ न दे दिया करो उसे आदम समझ के। तो हक और बातिल की शनाख्त और पहचान ये मुसलमान का मकसद हयात है। दस्ते हक में हक, हाँ सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना हक्का के बिना ला इलाहा। तो ये जो हक की चेन है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि मैं इस चेन की कोई कड़ी बना हूं या नहीं। और अगर बन गए हैं तो आपको मुबारक और अल्लाह इस पे इस्तिकामत अता फरमाए, और अगर नहीं है तो फिर फिक्र का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस हक के साथ वाबस्तगी और इस पे इस्तिकामत नसीब। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह। नाज़रीन किराम, क्या खूबसूरत मौजू और मौजू के एतबार से क्या रहमतें बरकतें आज हमारा हिस्सा बनी हैं, ये हम यहाँ बैठ कर भी महसूस कर सकते हैं। और हमारे जिन जिन नाजरीन ने अपने दामन को कशकोल बनाकर पसारा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, यकीनन उन्होंने भी अपना हिस्सा ज़रूर वसूल किया होगा। और हम यहाँ बैठे महसूस कर रहे हैं, आप अपने घरों में ARYQTV की वसातत से आज रहमत की इस बरसात में लफ्ज़ हक़ का जो जिक्र हुआ और उसके हवाले से जो बरकतें हमने समेटी वो हमारा हिस्सा है। अल्लाह करीम हमें इसी राह पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात इसको पढ़ना चाहें बतौर वजीफा तो 108 बार सिर्फ इसकी 108 बार पूरे दिन में 8 बार आपने इसका वजीफा पढ़ना है। खास तौर पे किसी भी वक्त अगर कोई कैदी है तो उसके लिए उलमा ने लिखा कि वो रात को आधी रात के वक्त नंगे सर आसमान के नीचे खड़ा हो अल्लाह और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जो इसमें हक है इसको 108 बार पढ़े। कैसे या हक्कु या हक्कु या अल्लाहु या हक्कु, ये मिला लें तो भी अच्छा है। या हक्कु 108 बार पढ़ के इसके वास्ते से दुआ कीजिए तो अल्लाह ताला आपको खलासी और रिहाई अता फरमाएगा। और अगर कोई शख्स परेशान हाल हो, कोई चीज़ गुमशुदा ना मिल रही हो, तो कागज़ पे 4 कोनों पे अल हक अल हक अल हक अल हक लिख दे और सेंटर में उस चीज़ का, माल का, असबाब का जो भी है उसका नाम लिख दे और आसमान की तरफ अपनी हथेली पे वो कागज रख के अल्लाह को वास्ता दे दे इसमें अल हक का, तो उसकी गुमशुदा चीज मिल जाए। क्या बारकल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, रहमत सहर ARYQTV से आप बराह रास्त देख रहे हैं। दाता की नगरी लाहौर से हुजूर सैयद हुजवेर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नगर से मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना है। अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब आपका, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, हम दोनों मेज़बान मैं सफ़दर अली मोहसिन और जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही आपसे इजाज़त तलब करेंगे। कराची से ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जनाब रईस अहमद। और नाज़रीन किराम, आज क्योंकि बहुत खूबसूरत दिन था सैयदा पाक के हवाले से, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप उनके तवस्सुल से उनकी ज़ाते सतूदा सिफ़ात की निस्बत से दुआ कीजिए कि हाजी अब्दुल रज़ाक साहब अलैहिर्रहमान की अहलिया मोहतरमा को अल्लाह शिफाए कामिला नसीब फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के और भी जितने बीमार घरों में अस्पतालों में पड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ाते कुद्स के सदके उनको शिफा याब फरमाए, हम सबको भी शिफा याब फरमाए। मैं नात का सिर्फ एक शेर कहता हुआ रूफ़ी साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो कलाम का आगाज़ करें। हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, हम कहाँ इज्जत के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। रूफ़ी साहब।
وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے، وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے، تو جان لے کامل تیرا ایمان نہیں ہے، وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے۔ سینے میں اتار اس کو، اسے ڈھال عمل میں، سینے میں اتار اس کو، اسے ڈھال عمل میں، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، وابستہ نبی سے جو تیری جان نہیں ہے۔ امت میں ہمیں پیدا کیا اپنے نبی کی، امت میں ہمیں پیدا کیا اپنے نبی کی، کیا ہم پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، کیا ہم پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ اور مہمان نوازی کے حوالے سے صحیح جی اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں